Hi guys, welcome to ZMediaIndia.com. My name is Simran Geswani, and today with me is a guest who wear many hats. She's an influencer, she's an actor, she's also an RJ. So please welcome the multi-talented RJ Karishma or Karishma. Thank you so much for being with us today. Thank you so much for having me, Simran. So firstly, Karishma, like I said, you're a multi-talented individual. You're an online sensation, you're an actress, and you've also been an RJ. But ये जो prefix है RJ का, that still remains. So Yeah. इसके पीछे कोई story है, or are you like really attached to the whole RJ thing? Does it hold a special place in your heart? See, I tell you, I mean, it does holds a special place in my heart for sure because I started my career with radio only. Right. So, when I was 5, I used to lock the door and wear my mom's sari, her Mhm. jewelry, and start acting in front of the mirror. Okay. छोटे सीरियल्स कुछ कुछ देख के मुझे ऐसा लगता था कि यार आई शुड डू इट लाइक ऐसा मैं कर सकती हूँ तो वहां से Right. माय जर्नी स्टार्टेड देन आई sat down one day and told my mom that I mean इसमें ही कुछ करियर बनाना है she was like Hmm. why I mean कैसे होगा क्या होगा so being a single parent so I lost my dad very like at early age so Okay. being a single parent she was skeptical about this thing कि Hmm. कैसे होगा कैसे मुंबई Right. जाएंगे क्या करेंगे Right. so then she said कि कुछ मिलता जुलता है क्या इससे Hmm. related I was like हाँ कुछ तो हो सकता है तो I chose mass communication so Okay. with that, I got this job in radio, like I mean campus selection hua tha. Hmm. So when I started my journey, I told them that this is not something I really want to do, but I think this could be a stepping stone for my career, जो मुझे आगे करना है. Absolutely. Right. Right. बहुत सारे लोग वहां पे इंटरव्यूज के लिए आते थे बहुत सारे डायरेक्टर्स आते थे तो आप बात कर पाते थे आप अंदर की बातें जान पाते थे कि कैसे काम होता है तो काफी Yeah. फैसिनेटिंग था मेरे लिए ओवरऑल सो एक दिन यही सब चलता रहा देन पैंडेमिक आया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग माय कंटेंट लाइक पहले भी बनाती थी बट उस टाइम पे लाइक बहुत ज्यादा टाइम मिल गया था Hmm. घर पे थी और वहां सब कुछ हो रहा था घर पे भी हो रहा था और फिर बहुत ज्यादा टाइम बहुत चीजों के लिए मिल रहा था सो आई स्टिल रिमेम्बर ये पहला वीडियो आई वाज नॉट पुटिंग इट अप जो मेरा Okay. पहला वीडियो वायरल हुआ था हाँ. माय सिस्टर इंसिस्टेड मी कि तुझे Hmm. करना चाहिए इट्स वेरी फनी. Hmm. So I was like, okay, so that video got like, 1 million views in 3 days, and I Wow. only had like 20K followers. Okay. That's how it started. But Hmm. RJ इसलिए because people like मैंने RJ अभी छोड़ी है like 2 years ago Right, right, में उससे right. पहले मैं कर रही थी तो लोग मुझे उस नाम से जानते हैं तो एवरी टाइम आई थिंक कि अच्छा हटा दे क्या फिर ऐसा लगता है कि यार इट हैज गिवन मी सो मच तो Right. this is not the right time to do it maybe later but right now I'm not ready for it I'm really attached to this name. That makes sense. That was also my next question कि जैसे आपने बोला कि आप आरजे अभी तक कर रहे थे 2 साल पहले तक and you were also doing content creation side by side. So Yeah, both of these require a lot of effort. So how did you used to manage this? it's really difficult to manage both the things but I'll tell you I kind of think these two fields are quite similar. Mm, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी लगती है जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए जहाँ पे यू हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ द ओनली right, डिफरेंस इज वन थिंग इज विदाउट द कैमरा एंड इन द अदर थिंग यू यू हैव टू यूज द कैमरा right, कि right. एक कैमरा के पीछे है कैमरा के आगे Hmm, है उतना ही डिफरेंस है तो आई थिंक दिस एंटायर जर्नी मतलब जो मेरा hmm, आर्जिंग का रहा है एक्चुअली प्रेप मी फॉर कंटेंट क्रिएशन. right. और फिर ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से जागा? ये मैंने कहा हमेशा ना से लाइक था? आई वाज 5 आई यूज्ड टू वेयर माय मम्स साड़ी एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और मैं कमोलिका बनती थी तो वो हमेशा ऐसे होता था इनफैक्ट बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे घर पे कोई मेहमान आते थे ना दे यूज्ड टू टेल माय मॉम लाइक इज समथिंग रॉन्ग विद योर डॉटर बिकॉज आई यूज्ड टू टॉक टू माय सेल्फ मतलब Okay. कभी भी ऐसे बातें करती थी कैरेक्टर्स बना हाँ, के तो मम्मी right. one day she said कि like it's okay if you want to do it like do it but don't do it Yeah. in front of other people. Others. I mean Yes. they will think कि इसको कुछ प्रॉब्लम हो गया है ये खुद से ही बातें करती रहती है Right. तो वो एक था कि उस टाइम पे मतलब ऐसा लगा कि यार ये कीड़ा है ना ये कभी नहीं जाएगा बट आई एज आई सेड कि आई लॉस्ट फादर एट वेरी अर्ली एज so this plan seemed little unpractical at that time that I can
you know take this step and like full time creation में जाके मैं इसको एक प्रोफेशन बना सकती हूँ. Hmm. उस टाइम पे like when you lose your parent at very early age, you get mature enough to take the responsibilities and stuff, like अब तुम्हें Right. संभालना है. बट इसमें तो पता ही नहीं था ना क्या करना है उस टाइम Right. पे, कि you have The your point of 9 to reference. 5 job, Right. महीने का सैलरी आएगा, you can support your family और उससे ही होगा. And Hmm. that's what I did. Right. Right. To be very honest, I was not expecting this at all. I didn't see it coming. ये Yeah. जो भी हुआ है just happened step by step, and I'm very, very grateful for it. But I'll tell you, I mean, this is something I always wanted to do. This has You know. not happened overnight. मतलब Okay. एक्टिंग का कीड़ा मुझ में बचपन से ही है. Circumstances सब कुछ और थे, but this dream, you can say it, never left me fully. Like ऐसा होता है ना कि Hmm. करना है तो वो करना है, वैसा वाला Right. हमेशा से. Yeah. And you're fulfilling your dream. You're also coming on Find the Farzi. Yes, absolutely. So many congratulations, firstly, for that. Thank you. And tell us a little bit about the concept. आपका क्या role है, and how's the feedback been till now? So basically, I'll tell you the concept. It's an episodic series, where in every episode you have 5 contestants. Hmm. ठीक है. And एक टॉपिक होगा, फॉर एग्जाम्पल कि कौन है, कौन नहीं है बॉलीवुड फैन, फॉर एग्जाम्पल लाइक जो झूठ बोल रहा है. ठीक है. Hmm. एंड लाइक 5 of them will claim they are true Bollywood fans. Okay. बट उसमें से सिर्फ 4 लोग होंगे जो एक्चुअल में बॉलीवुड फैंस है, और एक कोई, मतलब Should- one person is pretending like Okay. he's fake. Yeah. Now, with the help of series of questions and games, जो बाकी के 4 हैं, they will figure out कि who is lying, कौन है Hmm. फर्जी. तो this is the concept, कि एक टॉपिक होगा जिसमें से 5 लोग क्लेम करेंगे सेम चीज के लिए, बट उसमें से एक झूठ बोल रहा होगा. Wow, that's And very I'm, interesting. and I'm hosting the show basically. मैं Okay. इसमें थोड़ी फूक डलवाती हूँ, इसने ऐसे. And I'm the one who has planted the फर्जी basically. मुझे पता है Okay. already कि फर्जी हाँ. कौन है. तो बट मैं हाँ. उसके अराउंड थोड़ा बहुत गेम्स और क्वेश्चंस के, इसने ऐसा बोला है, इसका मतलब ये हो सकता है फर्जी, तो Hmm. वैसा वाला. सो माय रोल इज टू होस्ट द एंटायर शो. Right. एंड मैं आपको गेम्स खिला रही हूँ और उसमें क्वेश्चंस है, कुछ मैं पूछ रही हूँ. बाकी this is my first OTT non-fiction show. I'm more into Right. fiction shows. I have never hosted on such a big platform, so that this was something very exciting for me. And thanks to Filter Copy Candid, क्योंकि already उनका tested Hmm. गेम है, गेम शो है, बट हमने उसको एक स्केल और अप किया और है आगे. यहाँ पे. Right. Right. हॉटस्टार पे है, एंड पीपल आर लविंग इट. लाइक लिटरली दे आर सेंडिंग मी द स्क्रीनशॉट्स कि Yeah. करिश्मा, ये वाला एपिसोड हमको सबसे ज्यादा पसंद आया है, इसमें हमको ये अच्छा लगा, अरे इसमें तो पता ही नहीं पड़ा फर्जी कौन. तो आई I'm एम sure. I'm लविंग द sure. रिस्पॉन्स. या That's amazing. Also मुझे बताओ कि रील में जब आप एक्टिंग करते हो और जो या आप पिक्चर्स में एक्टिंग करते हो, कितना डिफरेंस होता है? या पिक्चर्स में ऑब्वियसली मैंने अभी तक एक्टिंग नहीं की है पिक्चर में, बट आई टेल यू, आई मीन I mean for रील. OTT also, या जैसे आपने इसमें आई किया. टेल यू, सी द मेजर डिफरेंस इज कि जब आप एक्टिंग कर रहे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, वहां पे Hmm. यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर somebody else, like मतलब किसी और की स्क्रिप्ट के लिए आप काम कर रहे हो, किसी और के आइडियाज पे आप काम कर रहे हो. डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं जो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, आप एक Right. प्रोडक्शन हाउस के अंडर काम कर रहे हो. बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन कैरेक्टर्स और योर ओन कंटेंट क्रिएशन, यू आर योर ओन बॉस. ठीक है, Right. आप सब कुछ खुद कर रहे हो. लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई डू एवरीथिंग बाय माई ओन. लाइक आई राइट माई स्क्रिप्ट, आई एडिट देम, देन आई पोस्ट इट, कि कोई और Hmm. है नहीं कि जो Hmm. कर रहा है. सो ये डिफरेंस है, बट आई बिलीव both roles demand commitment, Yeah. skills, talent, obviously. बस यही फर्क है कि थोड़ा बहुत ऑडियंस का फर्क हो जाता है कि यू आर अप्रोचेबल टू योर ऑडियंस. Yeah. एंड वहां पे है कि मूवीज की है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि जहाँ पे वो एग्जैक्टली वैसा कनेक्ट नहीं बैठ पाता है. But what do you like better? क्योंकि इसमें कंट्रोल पूरा आप पे रहता होगा when you're doing your influencing thing. Yeah, to be very honest, whenever I get these opportunities, I always say I want to release my show first. Then Oh I wow. think कि हम लोग see
So after this non-fiction show, I have this fiction show coming up on my Okay. YouTube and Instagram, which is directed by and written by me. Oh, तो wow, that's कभी भी amazing. अपॉर्चुनिटी आती थी ना, मैं हमेशा ये बोलती थी कि पहले प्लीज मुझे अपना शो रिलीज करने दो, बिकॉज आई वांट दैट फीलिंग कि कैसा होता है कि व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय यू आर एक्टिंग, यू आर डायरेक्टिंग, यू आर लाइक राइटिंग इट अप. सो Right. या आई मीन आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी खुद अपना शो लिखना और उसके लिए काम करना. एंड Hmm. उसके बाद जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ऑब्वियसली I'll be specific about a few things क्योंकि when you are a creative person तब आप सब कुछ नहीं कर लेते हो. So, जैसे आपने जो OTT में you ventured into it, before that only you were famous, you were an Yeah, online sensation. So, yeah. कोई difference होता है like how you're treated on the sets? Is there any difference between how an influencer is treated and how a newcomer is treated? Yeah, to be very honest, like, I mean, जहाँ पे भी मैं गई हूँ, मेरा experience was amazing. I mean, Hmm. सी पहले मैंने ऐसा सुना था कि they look down upon you, कि ऐसा लगता है कि अच्छा इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये है, इनको नहीं आते, कौन इनको लेकर आ गया, इनके नंबर्स हैं, बस इनको आता जाता तो कुछ नहीं है. But Right. I believe now they see your work also. ठीक है, Yeah. क्योंकि अब पहले ऐसा नहीं था कि पता है किसी से सुना है, अच्छा ये आगे आ गए. But Hmm. now they know you're very talented. Now they know how do you work. So basically, Right. I'll tell you like my story. Whenever I got this opportunity to work with some A-listers or some celebrities, उन सब ने मेरे को आके बोला है कि हमने आपका काम देखा एंड गर्ल यू आर वेरी फनी, लाइक वी लव इट. Hmm. तो वहां पे मुझे Yes. कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम एन आउटसाइडर और वो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि अच्छा ये सिर्फ अपने फॉलोअर्स की वजह से यहाँ पे, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है. Right. Right. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अनट्रू कि किसी भी अगर इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है, जस्ट नॉट अबाउट द नंबर्स. Absolutely. इफ यू हैव क्रिएटेड समथिंग, आपका आप कुछ बना रहे हो, आप चाहोगे कि कोई सिर्फ नंबर की वजह से आके उसको बस कर दे. यू वांट No, स्पॉइल no. दैट प्रोजेक्ट, राइट? आप Absolutely. चाहते हो कि बेस्ट लोग हो उस प्रोजेक्ट में. Hmm. एंड हो सकता है कि एक्टर्स की तरह हम लोग शायद वन टेक में ना दे, दो टेक्स में ना दे, हम लोग ज्यादा टाइम ले, हम लोग शायद उतने प्रिपेयर नहीं है. बट Right. इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर नॉट लाइक वर्दी, हम लोगों को Right. नहीं आता है, हम लोग नहीं कर सकते हैं. Hmm. सो आई थिंक मुझे बहुत ही प्यार से रखा गया जिस भी सेट पे मैं गई हूँ. So जैसे आपने बोला कि आपके को-स्टार्स ने आपको बोला कि you are very funny. So या, I also, of course, everybody online thinks that. I also think that. I love your videos. थैंक यू. And so tell us कि were you inherently like always funny? And कभी ऐसा होता है कि you also have some self doubts कि यार ये जोक लैंड नहीं करेगा, इसको डालूं या नहीं डालूं? किसी से वैलिडेशन लेते हो आप पब्लिश करने से पहले? I'll tell you very frankly, this comedy runs in my family. But अच्छा. mostly on the paternal side, like they are super funny. If you हाँ. do a normal conversation with my family, ना कोई जोक आपको जोक. उसमें मिलेगा. तो हाँ. वो मुझे लगता है वो मुझे फैमिली से कहीं और से नहीं आया है, मतलब इट्स देयर. मतलब Right. बचपन से ही ना मैंने अपने कजिन्स को, मैंने डैड भी मेरे बहुत फनी थे, मेरे अंकल सब बहुत फनी, उनके साथ बैठो ना ऐसा लगता है पूरा दिन कैसे निकल गया समझ में नहीं आता है. तो Hmm. वहां से डेफिनेटली ये इंस्पिरेशन है. बट योर सेकंड क्वेश्चन वाज, सॉरी आई फॉरगॉट, लाइक आई कि मीन हाँ. do you take validation? Yeah. So I'll tell you, as I earlier discussed this with you, that when I put up my first video, no, हाँ. जिस जो मुझे 1 million, आई वॉज नॉट पुटिंग इट अप. सो Hmm. मैं इतना क्रिटिसाइज करती हूँ खुद को जिसकी जहां पे जरूरत भी नहीं होती है. समटाइम्स आई Yeah. फील इट, लाइक आई मीन, इट पुशेस यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड Hmm. आप थोड़ा और बेस्ट करने लगते हो. बट Right. कभी कभी मैं इतना ओवर क्रिटिसाइज कर लेती हूँ जहां पे मतलब इट्स नॉट नीडेड. Required. Yeah. Yeah. या मतलब वो इतना अनहेल्दी हो जाता है कि मुझे फिर खुद को बोलना पड़ता है कि गर्ल दिस इज रॉन्ग, लाइक यू कैन नॉट डू इट. Right. समटाइम्स इतना क्रिटिसाइज आप करोगे तो आप शायद स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे जो आपको स्टार्ट करना होता है. क्या वहीं भी Absolutely. स्टॉप लगा लेते हो कि ओके यू कांट डू दिस. माय Hmm. फर्स्ट वीडियो व्हिच आई वाज नॉट पुटिंग इट अप, लाइक आई मीन, आई आस्क्ड माय सिस्टर थ्राइस should I put it. She said this is funny. I said no, people will laugh at me, they'll be like कि क्या है बेवकूफ, कुछ तो भी कंटेंट बनाती है. Hmm. इमेजिन अगर मैंने वो वीडियो आज नहीं डाली होती, दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो, उसके बाद आई नेवर, मैं यहाँ Yeah. पे आपके सामने नहीं बैठी होती. तो आई हैव Absolutely. सेल्फ रिजेक्टेड मेनी टाइम्स और मैं इतना खुद को
इतना आई एम रियली हार्ड ऑन सेल्फ, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी कभी समझाना पड़ता है खुद को कि कुछ तो अचीव किया है, लाइक बी एब्सोल्युटली। हैप्पी, खुद खुश रहे, ऐसा मतलब इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट ग्रेटफुल, बट इट्स हम्म। जस्ट कि बहुत बार खुद को बताना पड़ता है। या दैट्स हार्मफुल, मुझे लगता है कि इट्स वेरी अनहेल्दी एंड हार्मफुल। एक थोड़े से अमाउंट में करो तो इट्स ओके, बट इफ यू ओवर क्रिटिसाइज योर सेल्फ देन इट्स पेन फॉर श्योर। yeah, I'm sure, but it has its pros and cons both. If you get too That's what I satisfied said. also. Yes, yeah, exactly. So it keeps me grounded, to be very honest. Yeah, तो सबसे yeah, बड़ा that's वो है कि यार हाँ, हवा में मत उड़ो, बहुत कुछ नहीं उखाड़ा है तुमने टाइप। good. But sometimes I like कि be like little bit on softer Right, side, तो वैसा वाला right. कि चलो ठीक है। और ये जो आपके आइकॉनिक कैरेक्टर्स जो आपने हमको दिए जिसमें हम देखते रहते हैं पूरे वक्त और हंसते रहते हैं, ये इज इट रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ? आपने कहीं से पिक करे हैं या आप ये खुद क्रिएट करते हो? A few of them are, but to be like more precise, I'll tell you, like I'm not someone who locks herself in the room and like think of ideas. हम्म। I am someone who is like all the time surrounded by people because my content comes from different people and people पीपल, around या। me. ठीक है, I राइट। observe a lot. I'm a keen observer. या। कुछ भी होता है ना, in fact yesterday only I was at some पार्टी ओनली, घर का ही था वो कुछ, तो मैं वहां पे गई एंड कुछ दो लोग ना दे वर टॉकिंग अबाउट दिस कि हमें कैसे ट्रैवल करना चाहिए। सी मैं ना जापान गया हुआ हूँ और तुम वहां मत जाना, अरे तुमने वहां किया है, तुम वहां मत बुक करो, वो बकवास जगह है। तो मैं देख रही थी कैसे लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस बट करते इस चीज के लिए और बात या। करते। तो वहां से आई स्टार्टेड लाइक, मैं उधर से अपना नोट्स निकाल के मैं लिखने ओ लगी माय गॉड। आइडिया, लाइक ये हो सकता है। तो पूरे वक्त कंटेंट चलता है दिमाग में। Yeah, exactly. So daily life में I believe कि मैं हमेशा खुद को ये बोलती हूँ, when you are an original content creator, when you create something which is original, then आपकी यही यहीं से आप इंस्पिरेशन ले सकते राइट, हैं। राइट। Otherwise you just have to wait for other creators to post videos और उनके देख देख के आप काम करो। I always say राइट, there's a thin line between imitation and inspiration, you know, and I know where to draw that line। ठीक है, हम्म। मुझे कहीं से इंस्पिरेशन भी मिल रही है, ठीक है, पर आई एम हैप्पी कि मेरा दिमाग इतना चलता है कि मुझे आसपास में ही रोज कंटेंट मिलता है। क्रिएटिव ब्लॉक होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम राइट। लाइक आई गेट माय कंटेंट एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट। That's good. That's amazing. Also, बहुत सारे content creators हैं, who emerged in lockdown. I think, if I'm not wrong, you also rose to fame during that time. एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। अब जो है थोड़ा सैचुरेटेड हो गया कंटेंट क्रिएशन का स्पेस। सो डू यू थिंक कि एक एडवांटेज था, लाइक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर कंटेंट क्रिएटर्स पैंडेमिक? Yeah, definitely advantage तो बहुत था। As I said, like I mean, too many people showcase their passion on this platform, हम्म। YouTube और Instagram, जहाँ पे उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये इनका प्रोफेशन बन सकता है। राइट, और राइट। बहुत लोगों ने देख देख के भी अब कि अच्छा ये भी कर रहे हैं तो हाँ। हमें भी ऐसा करना चाहिए। बट क्या अब ज्यादा डिफिकल्ट है, फॉर समबडी हु इज गेटिंग या इनटू दिस स्पेस? एब्सोल्युटली डिफिकल्ट इसलिए है, पहले तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है, देन या। यू हैव टू लाइक रियली पुश योरसेल्फ हार्ड टू स्टैंड आउट। हम्म। ठीक है, कि अगर ये कर रहा है, मैं जब थी मुझे लगता था कैरेक्टर्स उस टाइम पे भुवन ने किए थे बहुत टाइम पहले, और फिर या। मैं अपने कैरेक्टर्स को लेके आई थी। मेरा कुछ अलग था, प्राजक्ता ने भी ऑब्वियसली स्टार्ट किया था, बट मेरा जो था मम्मी जी, और वो किसी ने टच नहीं किया था, लाइक दैट मम्मी हम्म। जी आईपी जो राइट, सास राइट। बहू वाली थी, दैट वाज द राइट टाइम बिकॉज लाइक सास बहू सब दोनों घर में रह रहे हैं, और उस टाइम पे टारगेट ऑडियंस बहुत ही सही हिट हुआ था। हम्म। तो मुझे लगता है अभी ये डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि लोगों के पास तब शायद हाथ में सिर्फ फोन था और वो सिर्फ हम्म। फोन में चीजें देख कंटेंट। रहे होते थे। नाउ इट्स लाइक मोर डिफिकल्ट बिकॉज नाउ पीपल आर डूइंग देयर अदर जॉब्स आल्सो। हाथ में या। हमेशा फोन नहीं होता है, तो शायद आपको उतने व्यूज, उतने लाइक्स और उतना अटेंशन नहीं मिले। और हम्म। इतने सारे लोग कर रहे हैं तो आप क्या अलग कर रहे हो? इफ यू आर नॉट राइट। डूइंग anything different or unique, I don't think you can survive. So या। it's a challenge for sure. Like तब So पूरा what would be, one tip that you would like to give to budding content creators? so first of all, like stop, self rejecting, जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि नहीं हो पाएगा। I know it's a time taking process, it takes time and sometimes it's okay to feel stuck, हम्म। चलेगा।
कोई जरूरत नहीं है कि सोचने की क्यों नहीं हो रहा है, एल्गोरिदम ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। डोंट थिंक ओवर मच, लाइक डोंट थिंक टू टू मच ओवर मच, आई एम सेइंग। डोंट थिंक डोंट Too थिंक टू much. मच, लाइक whoever Yeah. thinks you can't do. I believe the fun is in the journey, not just Hmm. the numbers. So you Right. have to live this process. और जैसे Hmm. आप वो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे ही होगा। जैसे मैंने कहा, मैंने भी शुरू किया, सब कुछ ओवरनाइट नहीं हुआ। बट वो पेशेंस की कमी जो आजकल की हम जनरेशन में है, दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव दैट पेशेंस, आई एम श्योर यू कैन डू एनीथिंग। मतलब उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है धारणा। आपको क्या लगता है कि वो अभी अच्छे वीडियोस, वो बहुत पहले से अच्छे वीडियोस बनाती है, जब से मैं Yeah. उसको देख रही हूँ। Right. Right. उसके वीडियोस जब मैंने देखने शुरू किया, आई थिंक उसके कुछ 70-80 के फॉलोवर्स थे, एंड वो तब से Hmm. फनी थी। आई यूज्ड टू सेंड दोस वीडियोस टू माय सिस्टर। तो इसका मतलब Hmm. नहीं है ना कि उसके फॉलोवर्स नहीं थे, वो अच्छा काम नहीं करती थी, बट उसने Absolutely. पेशेंस रखा ना, तो अब जाके लोग उसके काम को और देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू जज योरसेल्फ विद द नंबर्स यू हैव ऑन इंस्टाग्राम। लाइक आई Right. मीन, बी पेशेंट। ज्यादा Give लोगों yourself तक time. पहुंचेगा, मे बी इट्स टाइम टेकिंग, बट यू विल बी देयर, यू विल किल इन Right. वन डे फॉर श्योर। पहले के टाइम पे ट्रेडिशनली देयर वर लॉट ऑफ मेल कंटेंट क्रिएटर्स। अभी हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि बहुत सारे फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स भी आ रहे हैं, जैसे आप हो, प्राजक्ता है, धारणा है, लाइक यू सेड। सो डिड यू फेस एनी स्टीरियोटाइप इन द बिगिनिंग एंड हाउ डिड यू डील विद दोस बायसेस? Yeah, it used to happen in the beginning. जब मैंने start किया था, and people were like, I mean, so I had this habit of checking my insights all the time. हम्म I would check my ratio क्या है, like female का कितना है, male का कितना है। तो मैं देखती थी कि 85-15, 85 females and 15। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, मैं ऐसा कुछ फीमेल सेंट्रिक तो नहीं बना रही हूँ, हम्म होना चाहिए कुछ, मेल्स क्यों नहीं है। उसी के बाद मैंने कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किया। आई थॉट मे बी डॉटर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, ये कंटेंट उनको नहीं पसंद आ रहा होगा, तो मुझे कुछ ऐसा हम्म फैमिली ओरिएंटेड बनाना चाहिए जिसमें दे कैन ऑल्सो वॉच माई कंटेंट। सो आई स्टार्टेड राइट मेकिंग दैट कंटेंट। तो उसमें भी कभी कभी आई सी माई कमेंट्स एंड लाइक कि अरे तुम तो किचन जाओ, तुम्हारा तो कॉमेडी नहीं हो पाएगा, हंसी तो नहीं आ रही है। पर अभी अदर हम्म हैंड में देखती थी कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसा हंस के पागल हो रही है कि ओ माय गॉड गर्ल, यू आर सो फनी। तब मुझे ऐसा लगता था कि ओके, ये डिफरेंस है यार, या इनको या ये करना ही है क्या। तो फीमेल कंटेंट क्रिएटर बोलो, इसको बोलो। बट हम्म आई विल टेल यू, लाइक आई एम वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ, बहुत चेंज हो गया है। नाउ आई सी हम्म रेशियो लाइक इट्स लिटरली 60-40, लाइक 60 फीमेल्स एंड 40 मेल्स। अभी भी मैं मीन्स जब वीडियोस डालती हूँ, लाइक कि लड़के लिखते हैं लाइक यू आर वेरी हम्म फनी, आई लव योर वर्क। मैं अपनी मॉम को देख के, अपनी मॉम को बैठ के दिखाता हूँ, उनको सेट हम्म करता हूँ। सो आई वोंट से कि लाइक इट हैज फुली चेंज्ड, but like the improvement is there for sure, and I have या experienced it personally. ऑल्सो एक पब्लिक फिगर होने का पार्ट एंड पार्सल होता है कि ट्रोलिंग भी होगी। सो हैव यू डेल्ट विद ट्रोलिंग एंड हैज इट टेकन अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एवर? तो आई टेल यू वेरी फ्रैंकली सिमरन, कि मैं ना बहुत ज्यादा, आई एम एन ओवर थिंकर। लाइक हम्म आई ओवर थिंक लॉट। तुम कुछ हम्म इतना सा बोल दोगे ना, उस पे मैं अपनी पूरी स्टोरी बना लूंगी और मैं पूरा रात उस पे सोचने लगूंगी। सो इट डज अफेक्ट मी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो पहले हम्म व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि आई स्टॉप चेकिंग माई डीएम्स, आई स्टॉप चेकिंग हम्म माई कमेंट्स। ठीक है। और कुछ भी होता था, मुझे ऐसा लगता था अच्छा कोई बुरा कमेंट है, उसको डिलीट कर दो, सो दैट बाकी लोग उसको देख के नीचे और कुछ बोलने ना लग जाए। बट मैं कभी भी हम्म अपने डीएम ज्यादा खोलती नहीं थी, मुझे लगता था किसी ने कुछ बोला तो नहीं। बट राइट व्हेन इट कम्स टू माय कंटेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल नहीं किया मेरे कंटेंट को लेकर, सभी हम्म ने पसंद किया है। But when I went to Cannes, you know, यस the scrolling happened, like अच्छा हम्म कौन इन इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे बुला रहा है, ये क्यों चली गई वहां पे, इसने क्या पहना है, इसने क्या। यस यस टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक फॉर अ डे और टू आई थॉट अबाउट इट एंड इट अफेक्टेड मी। बट उसके हम्म बाद मैंने बोला कि वो लोग तो नहीं है ना यहाँ पे, मैं हूँ यहाँ हम्म पे। ठीक है, जो मैंने हम्म एक्सपीरियंस किया है उन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड राइट वो राइट लोग अपने फेक अकाउंट से मैसेज कर करके हम्म कमेंट्स कर रहे हैं। तो उनके पास जब इतनी हिम्मत नहीं है कि हम्म आपके आपके पास आकर लाइक इन रियल आइडेंटिटी पर्सन वो आपको ऐसे बोले, देन राइट इट डजंट मैटर। बट राइट इट टुक टाइम, ठीक है, टू हम्म रियलाइज दैट, टू अंडरस्टैंड दैट कि
अगर आप फेमस हो तो ऑब्वियसली, मतलब शाहरुख सर को भी ट्रोल करते हैं ना कुछ लोग, सलमान सर को भी Absolutely. ट्रोल करते हैं, तो Right. यार तुम तो You've grown a ऑब्वियसली, thick skin. एग्जैक्टली, तो यू Yes. हैव टू बी लाइक दैट, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव। So this year you didn't go for Cannes. Last year you did your debut, right? Yeah, last time I went there, and to be very honest, it was an unforgettable experience for me because I was surrounded with such global talent and masterminds जिन्होंने ऐसी amazing movies बनाई है। See, मैं हमेशा Hmm. सबको यही बोलती हूँ कि when you see people or influencers on the red carpet, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये यही यही करने गए हैं वहां पे, but Yeah. it's a process. You Hmm. have to walk the carpet first, then Hmm. you can अटेंड द स्क्रीनिंग। ठीक है, ऐसा Right. नहीं है कि आप कहीं पीछे के दरवाजे से आके और Okay. आप स्क्रीनिंग देखने आ गए हैं, तो Right. आप जा रहे हैं पहले एक कार्पेट से, और वहां पे समटाइम्स यू आर कंफ्यूज कि अरे ये इनको यहाँ पे क्यों भेज दिया, इनको यहाँ पे क्यों बुला लिया। यू मस्ट हैव Hmm. हर्ड इट लाइक Yes. टू Yes. मेनी टाइम्स। सो फॉर देम आई वुड लाइक टू से, इफ any influencer is there na, like forget about like his सिनेमा नॉलेज, वो तो ठीक है, Hmm. वो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है जो क्लेम करते हैं मैं बहुत कुछ पता है। Hmm. अगर हमें कोई ब्रांड वहां लेकर जा रहा है, वो इसलिए लेकर जा रहा है बिकॉज वी हैव अ वाइडर ऑडियंस। ठीक है, Absolutely. Yeah. शायद आपको कैन के बारे में नहीं पता होगा, बट आई विल टेल यू थ्रू माई प्लेटफॉर्म Hmm. कि कैन है क्या। Right. आप Right. तो पहले शायद कैन को कैंस बोलते थे, आप एस भी प्रोनाउंस करते थे, ठीक है, क्योंकि Yes. आपको नहीं Yes. पता। आप थिंक कि बाकी लोग करते हैं, शायद मुझे भी नहीं पता था, वहां जाके Hmm. आई एक्सपीरियंस कि नहीं ऐसा नहीं होता है। सबको ये Hmm. लगता है कि आप रेड कार्पेट पे आते हो और बस लाइक यू हैव टू लाइक पोज ऐसा Yeah. Yeah. वहां और काम हो जाता है। नहीं यार, इट्स अ टास्क। आप जब वहां पे जाते हो बहुत ही लंबी लाइन होती है, देन आप उतना गाउन में ऐसा चल चल के यू हैव टू वेट कि अब मेरी बारी आएगी टू वॉक द कार्पेट। आई थिंक ये Yeah. पूरा एक्सपीरियंस बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वहां जाके लोगों को बताया है। आपको आज Hmm. से पिछले 3 साल से कब ऐसा कुछ सुनने को मिला था? आप सिर्फ True. कपड़े देखते थे ना, आउटफिट ही देखते Yeah. थे ना पहन के आ रहे हैं, Hmm. एंड यू आर लिटरली कंफ्यूज कि आपको किस चीज के लिए ट्रोल करना है। मतलब मेरे टाइम तो लिटरली ऐसा ही हुआ कि पहले आप बोल रहे हो कि वी आर नॉट ड्रेस्ड प्रॉपरली, ठीक है, Hmm. देन ऑन द अदर हैंड यू आर सेइंग इट्स अ फिल्म फेस्टिवल, वहां पे तुम्हें फिल्म की नॉलेज नहीं चाहिए। आई मीन कम ऑन, पहले Yeah. तो पहले बता दो कि तुमको किस बारे में बात करना है। या तो तुम बोलो कि तुम कुर्ता पजामा में चली जाओ या नाइट सूट में चली जाओ वो रेड कार्पेट वॉक करके, और फिर Hmm. वहां पे मूवीज देखो। बट ठीक है, अगर तुम प्रॉपरली ड्रेस हो देन तुम बोलोगे अच्छा तुमने मूवीज के बारे में बात तो की नहीं, मतलब कुछ ना कुछ, दे आर नॉट हैप्पी। कुछ भी करो, दे Right. आर नॉट हैप्पी। तो इस टाइम Right. पे मुझे ऐसा लगा कि एक टाइम पे जो मुझे एक्सपीरियंस करना था वो मैंने Hmm. कर दिया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू विटनेस कि लोग वहां पे कैसे काम करते हैं। एंड Hmm. इमेजिन आप कोई ऐसी स्क्रीनिंग देख रहे हो एंड उसके डायरेक्टर्स और उसके एक्टर्स सब आपके साथ बैठे हुए हैं। There was this constant rush of goosebumps because I was like, oh Hmm. my God, I'm surrounded with such amazing and talented people. फिर मैंने बोला Right. ठीक है, इस बार ही थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हैं हम। अब देख Hmm. और भी लोगों को ऑब्वियसली मौका मिलना चाहिए जाने का। Yeah. या डेफिनेटली, सो क्या इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है एक बार गए देख लिया, आई एम हैप्पी। Yeah. A lot of people are saying कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स पे करके गए हैं, जैसे आपने बताया कि एक तो होता है कि आपको ब्रांड्स बुलाते हैं, दे स्पॉन्सर यू। बाकी हाँ मतलब बहुत पैसा लगता है, ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री में जाते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं। मैं जब गई थी तो राइट। मेरे लिए भी स्पॉन्सर्स थे। ठीक है, हम्म। तो अब वही है कि आप किसी बात को किस तरीके से बोल रहे हो, कि पैसा देकर जा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हम्म। ब्रांड्स मुझे पैसा दे रहे हैं, मैं आपके पैसों पर जा रही हूँ। आई दैट्स मीन स्पॉन्सर्ड। या या। एग्जैक्टली, बट अब आप मुझे बताएंगे कि अगर ऐसा ही है कि पैसे लेके तो फिर कोई हर कोई चला जाएगा, फिर एग्जैक्ट। सब या। लोग या। नहीं जा पाते हैं। तो आई थिंक कि बहुत सारी चीजें होती है व्हेन यू टॉक अबाउट इट। दो तरीके के लोग होते हैं जो उसको अ, अलग तरीके से बोलते हैं, तो फिर बाकी लोग भी कहते हैं ना कि आ जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये तो सही बोल रहा है, तो सही बोल रहा है। राइट। तो राइट। मुझे लग रहा है कि अब हर एक इन्फ्लुएंसर ने ये सीख लिया है कि ठीक है यार, देर तो कुछ तो लोग कहेंगे,
तो सही बात ऐसा है। वाला लोगों है। का काम है कहना। लोगों का काम है कहना। बट जी। आई एम हैप्पी विद माई ऑडियंस, आई एम हैप्पी विद माई पीपल फॉर सपोर्टिंग मी लेफ्ट राइट एंड सेंटर की करिश्मा, इवन लाइक व्हेन आई पोस्टेड दैट रेड कार्पेट का वॉक, हम्म। पीपल वेंट क्रेजी, लाइक उसमें ऐसा नहीं है मुझे लोगों ने ट्रोल भी किया नीचे, बट मुझे सबसे ज्यादा खुशी क्या हो रही थी कि जिन लोगों ने लिखा था वी हैव लिटरली आई मीन सीन योर जर्नी, एंड हम लोग हम्म। तब से आपके साथ है जब से आपने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था। एंड आई हम्म। वाज लाइक डूड, दिस इज व्हाट मैटर्स टू मी, और या। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप मुझे क्या बोल रहे हो, हम्म। क्योंकि आपको इतना प्यार कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं पे देना चाहिए कि दे आर सपोर्टिंग यू, दे आर देयर फॉर यू, आई मीन एज अ फैमिली। सो आई थिंक फॉर हम्म। मी नाउ it's more important, and like it does matter for me as compared to trolling and other stuff. That's amazing. One should focus on the good side only. Yeah, exactly, definitely. Yes. So now let's do a fun round with you. Okay. आपने इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए तो हम मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी और आपको अपने कैरेक्टर्स में उसका आंसर देना है. ओके. Okay. Yeah. So the first one is that you tell such characters that you don't want to get married anytime soon. So how would the characters respond? First would be mom, मम्मी जी. Okay, I'm telling my character that I don't want to get married. Yeah. Okay. Yes. So the response should be from the mom's side, right? Yes. Okay. फिर क्या करना है? यूं ही रहना है? ऐसे पड़े रहना है? रीलें देखनी है दिन भर? शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। तेरी उम्र में ना 2 बच्चे हो गए थे मेरे। बेवकूफ कहीं की। बताओ ना पापा, आंदा के पापा को बता। मेरे तो किस्मत ही खराब हो गई। ऐसे बच्चे मिल गए ना दिमाग ही खराब करते, रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आ जाते हैं। Wow, that was amazing. Okay, the next one is the fiance. ओह, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, फियांसे को बोल रही हूँ। अब fiance का पार्टनर बोल रहा है, उससे शादी होने वाली थी, आप fiance को बोल अच्छा, रहे ओके। हो. So I'm confused here. So fiance has to respond to the situation, or he They has to can tell? respond to the partner also or the situation, however you like it. अच्छा, ओके, ठीक है। बेब, क्या हो गया बेब? I thought like I mean we're so good together. मुझे कभी भी नहीं लगा कि यार मैंने किसी चीज की कमी छोड़ी यार। मैंने तो तुम्हें एफिल टावर के नीचे प्रपोज भी किया था, सब वेस्ट हो गया यार। आई मीन ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें लगा कि मैं एक ग्रीन फ्लैग नहीं रेड फ्लैग हूँ? कोई और पसंद आ गया कि तुम्हें? बेबी प्लीज टेल मी। बेबी सुनो, बेबी, अच्छा सुन, लिसन, आई लव यू बेबी। Lovely, lovely. Okay, the last one is the NRI Masi. You're not getting married? My God. शशि, आई टोल्ड यू ये बच्चे तुम्हारे बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। सी माय डॉटर, साइंटिस्ट भी है अभी, अभी शादी होने वाली है उसकी, क्यूटी क्यूटी, चबी चबी। आई थिंक ये जो तूने बच्चों को छूट दे रखी है ना पूरी पूरी बाहर रहने की, इस वजह से ये लोग तेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक झापड़, एक मासी लगाए, लगाए एक यूएस वाला झापड़, हाँ? Wow, that was amazing. Thank you so much for doing that. Anything you want to say before you want to we exit this interview? I just want to thank my audience. I just want to thank Hotstar for my first OTT non-fiction show. I just want to thank Filter Copy Candid. Already उनकी टेस्टेड प्रॉपर्टी पर उन्होंने सोचा कि करिश्मा इसको और अच्छे से कर पाएगी, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड बिलीविंग इन मी। एंड डेफिनेटली और भी फिक्शन नॉन फिक्शन शोज आने वाले हैं, तो जस्ट कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू गाइस डू फॉर मी। So I So love you. I sweet, really love so you. sweet, so sweet. Thank you so much for doing this, Karishma. It was lovely chatting with you. Likewise, Simran. Thank you so much Thank for you. having me. Thank you. Bye. Have a great day. Take Bye. care. You Bye. too.